Namaste. Now we will discuss properties of steam, enthalpy, Mollier chart and steam tables. Enthalpy of steam. Enthalpy of a steam is defined as mass of the system m multiplied by specific enthalpy h of the system and can be expressed as h is equals to mh, where h is enthalpy in kilojoule, m is mass in kilogram and h is specific enthalpy in kilojoule per kg. Enthalpy is the total amount of heat received by 1 kg of water from 0 degree Celsius at constant pressure to convert it to desired form of steam. It is the sum of internal energy and work done at constant pressure process, which is equal to change in enthalpy. Enthalpy of evaporation या enthalpy of vaporization. The enthalpy of vaporization is the energy required to turn water into gaseous form when it increases in volume by 1600 times at standard temperature and pressure. It is same as latent heat of vaporization. External work of evaporation. It is the fraction of the latent heat of vaporization which does an external work in moving the piston at constant pressure due to increase in volume. Its unit is kilojoule per kg. Internal latent heat या internal energy of steam. It is the energy required to change the phase. Hence, it is the actual heat energy stored in steam above 0 degree Celsius. It may be calculated by subtracting the external work of evaporation from the enthalpy. Its unit is kilojoule per kg. Latent heat of vaporization. It is the heat which causes a phase state change of water without raising its temperature. 2257 kilojoule of energy is required to evaporate 1 kg of water at 100 degrees centigrade into 1 kg of steam at 100 degree centigrade. यानी 2257 किलो जूल एनर्जी चाहिए 1 किलो पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदलने के लिए. तो ये होती है इसकी गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सेंसिबल हीट. इट इज द हीट विच इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ वाटर बट डू नॉट चेंज इट्स फेज. दिस इज कॉल्ड सेंसिबल. खाली तापमान बढ़ाते इसका फेज चेंज नहीं करती है. Specific enthalpy. Specific enthalpy is a property of the fluid and can be expressed as H is equals to U plus PV, where U is internal energy in kilojoule per kg, P is absolute pressure in Newton per square meter, and V is specific volume in cubic meter per kg. Specific enthalpy of steam. It is the total heat contained in 1 kg of steam. It is the sum of enthalpy of various states, liquid, water and gases. Specific heat of steam. It is the quantity of heat necessary to increase the temperature of 1 Celsius degree on a unit of mass of 1 kg of steam. अपन ने परिभाषाएं पढ़ ली. अब अपन मोलियर चार्ट क्या होता है. तो मोलियर डायग्राम है दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ बॉयलर्स या स्टीम का काम होता है, जहाँ स्टीम यूज़ की जाती है वहाँ पे इस चार्ट की बहुत महत्ता है. दिस इज़ द थर्मोडायनामिक फेज डायग्राम फॉर वाटर या स्टीम. जो इनकी प्रॉपर्टीज है स्टीम और पानी की, उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक डायग्राम होता है. द मोलियर डायग्राम इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द स्टीम टेबल्स ग्राफ्ड ऑन टू एंथैल्पी एंट्रोपी कोऑर्डिनेट्स. इट प्रेजेंट्स द रीजन दैट इज कॉमनली फाउंड इन प्रोपल्सन प्लांट्स स्टीम सिस्टम्स. जो स्टीम्स के पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये जनरली ये चार्ट्स काम में लिए जाते हैं, जिससे उसकी तुरंत जो प्रॉपर्टीज स्टीम टेबल्स में जो स्टीम की प्रॉपर्टीज है उनको ड्रॉ कर रखा है डायग्राम पे, तो वो होता है चार्ट, मोलियर चार्ट है. ये कैसा होता है ये देखिए. इस तरह से होता है. एक कोऑर्डिनेट पे एंथैल्पी होती है, एक कोऑर्डिनेट पे एंट्रोपी होती है. ये फिक्स प्रेशर लाइन्स है. इस प्रेशर लाइन्स पे इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है. ये होती है सैचुरेशन लाइन्स है. ये ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है. ये टेम्परेचर लाइन्स है.
तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे अपन देख सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर स्टीम है तो इसकी प्रेशर कितना होगा, इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसकी टोटल एंथैल्पी अपन यहाँ से देख सकते हैं। अगर अपने पास, अपन को पता है इतना प्रेशर और इतने टेम्परेचर का अपने पास स्टीम है तो उसका एंथैल्पी कितना होगा, उसका एंट्रोपी कितना होगा, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, ये सब चीज़ें अपन इस चार्ट से पता कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। इनका जो टेबुलेशन होता है इन प्रॉपर्टीज़ का, वो होती है स्टीम टेबल्स। तो स्टीम टेबल्स आर कंपाइलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, इसका कंपाइलेशन है टेबल्स के फॉर्म में। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, सैचुरेशन टेम्परेचर, ये इत्यादि। ये 1 किलोग्राम स्टीम के जितने ये वैल्यू होती है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। दीज आर अवेलेबल आइदर ऑन प्रेशर बेसिस और ऑन टेम्परेचर बेसिस। फिक्स प्रेशर बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज होती है, टेम्परेचर बेसिस पे प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। दीज टेबल्स आर यूजफुल फॉर स्टीम इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस एज वेपर्स डू नॉट ऑब्े गैस लॉ, क्योंकि वेपर्स गैस लॉ फॉलो नहीं करती है, इसलिए हर पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टीज को आप फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इनका एक टेबुलेशन होता है। द प्रेशर इन द स्टीम टेबल्स आर इन बार, ये बार में इनका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इन केस ऑफ गेज प्रेशर दे मस्ट बी कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट प्रेशर बाय एडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू देम। अगर गेज प्रेशर में है तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करने पड़ेगा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ के। ऑल द वैल्यूज गिवन इन स्टीम टेबल्स आर रिकन्ड एबव 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही सब वैल्यू दी हुई होती है इसमें। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अदर देन 0 डिग्री सेल्सियस, the enthalpy of steam will be calculated from the steam tables by deducting the amount of heat contained initially by water. steam tables में क्या करता है, कोई भी जैसे कोई भी टेम्परेचर पे आपको हीट निकालनी है, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट निकालनी है पानी की या स्टीम की या जो भी है, तो अपन को अपन ये मान के चलता है इसका जो डेटम है वो 0 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, तो उसके ऊपर की सारी हीट अपने पास आ जाएगी। लेकिन अपन को अगर डिफरेंस निकालना, जैसे कि आपने 70 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ चेंज की तो हीट कितनी ऐड हुई, तो आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रॉपर्टीज है उनमें से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रॉपर्टीज को रिड्यूस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर्टीज आपकी आ जाएगी। इस तरह की होती है स्टीम टेबल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम वाटर लिक्विड वेपर टेम्परेचर टेबल। इस तरह की टेबल, जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री पे बाहर की प्रेशर कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, एंथैल्पी कितनी होगी, एंट्रोपी कितनी होगी, है ना। जैसे 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बाहर में ये प्रेशर इतना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम सैचुरेशन लिक्विड का इतना हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर का इतना हो जाएगा, VF ये हो जाएगा, VG ये हो जाएगा, इंटरनल UF ये हो जाएगा, UG ये हो जाएगा, HF ये हो जाएगा, HFG ये हो जाएगा और HG ये हो जाएगा। जो प्रॉपर्टीज अपन ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए वो सारे स्टीम टेबल्स पे अपन पढ़ सकते हैं। एंट्रोपी ये हो जाएगी SFS, मीन्स ये वाटर की, ये लेटेंट हीट, ये गैसियस। इस तरह से ये टेम्परेचर पे इस तरह से ये टेबल्स होती है। तो इनसे अपन इजीली कोई भी प्रॉपर्टी लेके इसकी कोई भी कैलकुलेशन, हीट पावर कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।